So hello everyone, I welcome you all in our next video of Prayag Public School English Literature Movements. Periodic Test 1, Class 9th, Lesson 2, The Adventures of Toto, right? So class, if you remember in our last video, we have gone through the same chapter, right? We have studied a couple of paragraphs. We have already completed in live class also. Then I also gave you explanation in the video as well, right? So we have completed 2 pages at least of this chapter in both the class, right? So today we are starting with the same chapter, right? That is the Adventures of Toto. So let's see what is given in the last in few last pages of this particular story, and let's see what the conclusion of the story is, right? So let's proceed further, class. The Adventures of Toto by Ruskin Bond, right? Unfortunately, I could not accompany grandfather on that trip, but he told me about it afterwards. A big black canvas kit bag was provided for Toto, right? So if you remember, class, the last paragraph which we studied in our last video, right? So it was all about that his this author's grandfather was going to Saharanpur to take his pension, right? So he was going alone, and unfortunately this author was unable to accompany, or you can say he was unable to go with his grandfather, right? So what his grandfather did is that he took टोटो विद हिम, राइट? उन्होंने टोटो टोटो को अपने साथ वो ले गए, द बेबी मंकी. सो अनफॉर्चुनेटली, इसीलिए ऑथर यहाँ पे कह रहा है कि अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी. अकम्पनी मीन्स ओवर हियर यू कैन सी आई हैव रिटन सम मीनिंग, राइट? सो अकम्पनी मीन्स टू बी टुगेदर, राइट? देन कैनवस मीन्स अ लिनन और कॉटन बैग. स्ट्रॉ मीन्स ड्राई स्टेम्स या ड्राई ग्रासेस, यू कैन से, जो सूखी घास होती है उसे कहते हैं. अबोर्ड मीन्स होम. ओकेजनली मीन्स इरेगुलरली, मतलब कभी कभार. एग्जीबिशन मीन्स डिमॉन्स्ट्रेशन और शो. क्यूरियस मीन्स ईगर. एंड देन ऑनलुकर्स मीन्स आई विटनेस, जो आंखों देखा हाल बताते हैं या देखते हैं, राइट? सो लेट्स गो बैक एंड स्टडी फर्दर. So unfortunately, I could not accompany grandfather. So over here, the author is saying कि unfortunately, I was unable to go with my grandfather on that trip. Trip means when he was going, his grandfather was going to Saharanpur, right? But he told me about it afterwards. पर उस जर्नी के बारे में ऑथर के दादाजी ने उस ऑथर को, मतलब अपने ग्रैंडसन को बाद में उसके बारे में, उस जर्नी के बारे में बताया. अ बिग ब्लैक कैनवस किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो, राइट? सो एक बिग कैनवस बैग, कैनवस जैसे अभी हमने पढ़ा लिनन और कॉटन बैग. सो एक बड़ा सा कैनवस किट बैग, किट मीन्स कैरी बैग, वो प्रोवाइड किया गया टोटो के लिए. क्यों? क्योंकि वो खुले ऐसे टोटो को खुले में नहीं ले जाना चाहते थे. इस वजह से उन्होंने क्या किया, उस टोटो को अपने उस कैनवस के बैग में उन्होंने रखने को सोचा, मतलब बंद करके आराम से ले जाने को सोचा. दिस विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम बिकेम हिज न्यू अबॉर्ड. अब सम स्ट्रॉ मीन्स ड्राई ग्रासेस, मतलब सूखी घास उस बैग के नीचे लगा दी गई, मतलब बिछा दी गई, और वो अब उसका न्यू अबोर्ड हो गया था. अबोर्ड मीन्स अ न्यू होम. When the bag was closed, there was no escape. अब जब बैग बंद हो गया तो उसे उस बैग से टोटो के लिए निकलना या भाग जाना बहुत मुश्किल था, राइट? टोटो could not get his hands through the opening. Now Toto could not get his hands through the opening. मतलब जो भी थोड़ी बहुत उस बैग में जगह थी, उस जगह से टोटो अपने हाथ को निकाल नहीं सकता था. एंड द कैनवस वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू. और कैनवस जो वो बैग था वो बहुत बहुत ज़्यादा क्या था, बहुत ज़्यादा टफ था कि वो अपने दांतों से काट नहीं सकता था और काट के भाग नहीं सकता था. His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air. अब जो भी वो, अगर वो एफर्ट करता भी भागने का या निकलने का, तो बस उसका इफ़ेक्ट ये होता कि या तो बैग रोल करता उसके जंप करने से, और या तो वो खुद पूरा का पूरा बैग क्या होता, जंप होता, राइट? पूरा का पूरा बैग क्या होता, जंप होता हवा में.
an exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform. और जब ऐसा और ऐसा हुआ भी कि वो जब बैग वो दादाजी उसको ज़मीन में रख दिया करते थे, जहाँ भी वो रुकते थे, अगर वो रख दिया करते थे तो क्या होता था कि वो मंकी जो था, वो बेबी मंकी टोटो, वो उछलने लगता था और इस वजह से बैग भी उछलने लगता था या इधर उधर रोल करने लगता था। तो इस वजह से जो भी वहाँ पे लोग थे, जो भी प्लेटफॉर्म पे उस देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पे लोग थे, वो उस बैग की तरफ देख के बड़ा क्यूरियस थे, मतलब बड़े ईगर थे, ये जानना चाहते थे कि आखिरकार इस बैग में है क्या जो ये बैग इस तरीके से उछल रहा है, राइट। सो लेट प्रोसीड फर्दर क्लास। Toto remained in the bag as far as Saharanpur, but while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. Right. So again, you can see I have written some word meaning. Right. सो टर्नस्टाइल मीन्स अ मशीन गेट। जैसे आपने अभी मेट्रो में कभी ट्रैवल किया होगा तो आपने देखा होगा कि मेट्रो में जब आप टिकट ले लेते हैं, जब वो कॉइन ले लेते हैं, तो जैसे आप स्टेशन के प्लेटफॉर्म की तरफ जाते रहते हैं तो आपको एक मशीन गेट मिलता है। तो जैसे आप उसे कॉइन इंसर्ट करते हैं या वो कार्ड को टच कराते हैं तो वो मशीन गेट अपने आप खुलता है, ठीक है। तो उसी वैसे गेट को, जो मशीन गेट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, टर्नस्टाइल। पोक्ड मीन्स टू लुक थ्रू, ठीक है। ग्रिन मीन्स अ बिग स्माइल। अनॉयंस मीन्स इरिटेशन और डिस्टर्बेंस। इन वेन मीन्स पॉइंटलेस, वर्थलेस, राइट। क्वाड्रप्ट मीन्स 4 फीट एनिमल, ठीक है। फेयर मीन्स चार्ज या टिकट। प्रोडेड प्रोडेड मीन्स टू टच। ट्रायम्फेंट मीन्स जॉयफुल, राइट। So these are the meanings that I have written. So let's go back and study further. टोटो रिमेंड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर। मतलब जहाँ तक कि सहारनपुर की बात थी, मतलब ट्रेन की बात थी, तो वो ट्रेन में चुपचाप बैग में ही पड़ा था। कौन? ये टोटो। बट वाइल ग्रैंड फादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्न स्टाइल, पर जैसे ही वो अपने कार्ड को पंच इन कर रहे थे रेलवे टर्न स्टाइल मीन्स उस मशीन गेट पे, इसके दादाजी, टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रीन। तभी अचानक क्या हुआ कि उस टोटो ने अपना सर जो है वो बैग से बाहर निकालता है, ठीक है, और एक वाइड ग्रीन मीन्स एक बड़ी सी स्माइल किसको देता है, टिकट कलेक्टर को देता है। मीन्स उसको देख के, टिकट कलेक्टर को देख के एक बड़ी सी स्माइल ये टोटो करता है। द पुअर मैन वॉज टेकन अ बैग मीन्स वो पीछे हट जाता है, मतलब वो एकदम डर सा जाता है। अचानक ऐसी चीज़ उसके सामने, ये टोटो अचानक से उसके सामने उस बैग से अपना फेस निकाल के हंसने लगता है, तो वो थोड़ा सा डर जाता है और इसी वजह से थोड़ा वो पीछे हट जाता है। दैट इज़ वाई इट इज़ रिटन वॉज टेकन अ बैग। द पुअर मैन वॉज टेकन अ बैग बट विद ग्रेट presence of mind and much to grandfather's annoyance, he said, "Sir, you have a dog with you. You will have to pay for it accordingly." Right? तो अब वो कुछ अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड चलाता है और फिर ग्रैंडफादर को कुछ ऐसी बात करता है या ग्रैंडफादर से कुछ ऐसी बात कहता है कि उसे उस ग्रैंडफादर को, मतलब उसके ऑथर के दादाजी को बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है देख के और या सुन के। और वो क्या चीज़ रहती है कि टिकट कलेक्टर उस ग्रैंडफादर से ये कहते हैं कि सर, आपके पास ये जो कुत्ता है, ठीक है, वो जानता था, वो जो रेलवे टिकट कलेक्टर था वो जानता था कि ये मंकी क्या होता है, डॉग क्या होता है, पर फिर भी उसने मंकी को किस तरीके से बुलाया, उसने उसे डॉग कह के बुलाया, राइट। और फिर आगे कहता है कि आपको इसलिए इसके लिए टिकट देना पड़ेगा, मतलब जो भी इसका चार्ज है वो आपको पे करना पड़ेगा। और इसी वजह से ग्रैंडफादर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। In vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that the monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped. ठीक है, इन वेन का मतलब है यहाँ पे पॉइंटलेस। मतलब अब ग्रैंडफादर को ये लगा कि इस टिकट कलेक्टर को ये पता है कि डिफरेंस क्या होता है एक मंकी में, एक डॉग में, एक कैट में, ठीक है। हर एनिमल्स अपने आप में सब एक दूसरे से डिफरेंट हैं, राइट। फिर भी ये मंकी को, इस टोटो को ये डॉग कह के बुला रहा है। फिर भी अब उनके हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये तो पॉइंटलेस था उनके, कि वो एक्सप्लेन करें किसी को भी कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ मंकी एंड अ डॉग, राइट। देन ऑल्सो
वो जानते थे कि ये पॉइंटलेस है, वर्थलेस है, बट देन ऑल्सो ही टेकन आउट टोटो फ्रॉम हिज बैग, राइट। उन्होंने टोटो को बाहर निकाला अपने बैग से, और पॉइंटलेसली, मतलब पॉइंटलेस ही था उनके लिए भी, बट देन ऑल्सो ही प्रूव he wanted to prove the ticket collector that monkey cannot qualify as a dog, means monkey is monkey and dog is dog, right? और even as quadruped means 4 feet animal, मतलब 4 पैरों वाला जानवर। तो वो बताना चाह रहे थे कि भाई साहब आप देखिए, मंकी मंकी होता है और डॉग डॉग होता है, और मंकी को आप क्वाड्रप्ट भी क्वालिफाई, मतलब क्वाड्रप्ट की तरह भी नहीं देख सकते, क्योंकि क्वाड्रप्ट क्या होते हैं, 4 पैरों वाले जानवर होते हैं, राइट। सो टोटो वॉज क्लासिफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर। पर फिर भी उस टिकट कलेक्टर ने दादाजी की, मतलब इस ग्रैंडफादर की बात नहीं मानी, और टोटो को आखिरकार किस तरीके से उसने क्लासीफाई किया, एक डॉग के तरीके से। एंड 3 रुपीज़ वॉज द सम हैंडेड ओवर एज अ फेयर, और लगभग उसको 3 रुपये उसके ऊपर चार्ज लगा, राइट। लगभग 3 रुपये उस दादाजी को, मतलब ग्रैंडफादर को, एज अ चार्ज, एज अ टिकट चार्ज देना पड़ा, किसको, टिकट कलेक्टर को। लेट प्रोसीड फर्दर क्लास। Then grandfather, just to get his own bag, sorry, took from his pocket our pet tortoise and said, "What must I pay for this, since you charge for all animals?" अब ग्रैंडफादर ने जस्ट टू गेट हिज ओन बैक, मतलब अपने आप को टू प्रूव हिमसेल्फ दैट ही वॉज नॉट रॉन्ग, राइट। मतलब यहाँ पे ग्रैंडफादर अपने आप को प्रूव करना चाहते थे, एविडेंस एक हिसाब से प्रूव करना चाहते थे, या देना चाहते थे कि मैं गलत नहीं हूँ, बिकॉज आई एम कैरिंग अ मंकी बट यू चार्ज माई मंकी एज अ डॉग, और यू क्लासीफाइड माई मंकी दैट इज़ टोटो एज अ डॉग, सो आई एम नॉट रॉन्ग। सो इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो अपना एक टॉर्टॉइस, मतलब ये ऑथर कहता है जो हमारा पेट टॉर्टॉइस था, उसके वो दादाजी उसे भी साथ ले गए थे, तो उसको निकाल के उन्होंने मतलब ये जो दादाजी हैं वो उनसे उस टिकट कलेक्टर से बोलते हैं कि क्योंकि तुम सारे जानवरों को को लेकर के पैसे मुझसे ले रहे हो, चार्ज ले रहे हो, तो तुम बता दो कि मैं इस टॉर्टॉइस का आप कितना दूँ, क्योंकि ये भी मेरे साथ है। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टॉइस, prodded it. Prodded means to touch. यहाँ पे आप देख सकते हो, I have written what you can say meaning, right, over here. So prodded means to touch, right. So the ticket collector looked closely at the tortoise, मतलब बहुत मतलब केयरफुली, बहुत नज़र गड़ा के वो टिकट कलेक्टर जो होता है वो इस टॉर्टॉइस की तरफ देखता है। प्रॉडेड इट मतलब टच करता है अपने फिंगर से। गेव ग्रैंडफादर अ प्लीज्ड एंड ट्रायम्फेंट लुक, ट्रायम्फेंट मीन्स विक्टोरियस, मीन्स मतलब एक हिसाब से उसका ये रिएक्शन था उस टिकट कलेक्टर का ग्रैंडफादर को कि नो वरीज, मीन्स यू डोंट हैव टू वरी, आई विल नॉट चार्ज एनीथिंग फॉर दिस टॉर्टॉइस बिकॉज इट इज़ नॉट अ डॉग। तो वो ग्रैंडफादर से लास्ट में कहता है कि आप निश्चिंत रहिए, मैं आपके इस टॉर्टॉइस के बदले कुछ भी पैसे आपसे नहीं लूँगा। क्यों? क्योंकि ये डॉग नहीं है, राइट। सो लेट प्रोसीड फर्दर क्लास। When Toto was finally accepted by grandfather, he was given a comfortable home in the stable. Stable, you know, the is a place where horse live, right? जो जहाँ पे घोड़े रहते हैं। तो जब टोटो को फाइनली एक्सेप्ट कर लिया गया, मतलब ग्रैंड मदर ने, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया, तो उसे एक जगह मिल गई स्टेबल मतलब जहाँ पे घोड़े रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमने शुरू में ही पढ़ा है, या शुरुआत में पढ़ा भी है, दैट दिस ग्रैंडफादर वाज हैविंग अ लिटिल जू, सो दिस स्टेबल प्लेस वाज देयर इनसाइड द जू ओनली, राइट, दैट हिज लिटिल जू। सो in that stable he was given a comfortable place to live. Who was given? The Toto. Where he had for companion the family donkey Nana. और वहाँ पे उस टेबल में उसका कंपेनियन कौन था? डोंकी था, फैमिली डोंकी था, इनके घर का डोंकी था, जिसका नाम क्या था? नाना। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ़ ही वॉज कम्फर्टेबल। और टोटो की वो पहली रात थी उस स्टेबल में, उस जगह पे, तो ग्रैंडफादर ने रात में जाके देखने के लिए सोचा कि जाके मैं देख के तो आऊँ कि ये जो टोटो है वो वहाँ पे कंफर्टेबल है कि नहीं। टू हिज सरप्राइज
he found Nana without apparent cause pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. Right? So मैंने यहाँ पे कुछ मीनिंग्स और लिखी हैं, वो आप देख सकते हो. Apparent means obvious और clear. ठीक है. Halter means a strap or rope. Hay means dried grasses. राइट. और ड्राइड ग्रास मतलब जो सूखी घास होती है. haunches means thigh या hips means especially the back part of any animals, right. jerked means to pull or drag मतलब खींचना या उखाड़ना. then fastened means to tie or to grab, right. और आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि halter का मतलब ये आप रस्सी देख रहे हो जो घोड़े ये इस घोड़े की चारों ओर बंधी हुई है खासकर फेस पे, दैट इज़ नोन एज halter, राइट. और आपको हे भी दिखा दूँ, ये आप घासेस ये ग्रासेस देख रहे हो जैसे ड्राई हो गई, ये ग्रीन वाली नहीं, ये जो पड़ी हुई है दैट इज़ नोन एज हे, राइट. अ बंडल ऑफ हे आप इसे कह सकते हैं. So let's go back and study further. So when Toto was finally accepted by the grandmother, he was given a comfortable home in the stable, where he had for a companion the family donkey Nana. On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. To his surprise, he found Nana without apparent cause, pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay, right. So और जैसे ही वहाँ पे वो दादाजी मतलब इस ऑथर के दादाजी जैसे ही वहाँ पे जाते हैं उस टेबल पे मतलब उस टेबल में मतलब उस जगह पे, तो वो देखते हैं कि नाना मतलब विदाउट अपेरेंट कॉज. अपेरेंट अभी हमने पढ़ा है क्या मतलब है, ऑब्वियस या क्लियर. तो बिना कोई रीज़न के मतलब उनको कोई रीज़न दिखा नहीं, ना उनको कोई ऐसी चीज़ दिखी जिसकी वजह से उसको दिक्कत हो रही हो उस नाना को, पर वो फिर भी क्या कर रही थी, अपने रस्सी को पुलिंग एट हर हॉल्टर मतलब अपनी रस्सी जो बंधी हुई थी उसके गले के चारों ओर, वो उस रस्सी को खींच रही थी, उस रस्सी को खींच रही थी. ठीक है. एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल. और वो खींच किसकी वजह से रही थी, या मतलब किससे दूर अपने चेहरे को कर रही थी, या किसको खींच के अपने आप को दूर कर रही थी, उस बंडल ऑफ हे से. मतलब वो नहीं चाह रही थी कि उसका चेहरा या उसका जो फेस था वो इस बंडल ऑफ हे से में लगे या टकराए. तो बंडल ऑफ हे मीन्स द बंडल ऑफ ग्रासेस, ड्राई ग्रासेस, राइट. तो वो क्या कर रही थी, वो अपने इस रस्सी से अपने चेहरे को, अपने मतलब पूरे फ्रंट पार्ट को वो हटा रही थी, इस पड़े हुए जो घास थी, जो सूखी घास पड़ी हुई थी, उससे अपने आप को दूर खींचने की या हटाने की कोशिश कर रही थी, राइट. सो लेट प्रोसीड फॉर द क्लास. Okay. Grandfather gave Nana a slap across her haunches and she jerked back, dragging Toto with her. He had fastened onto her long ears with his sharp little teeth. अब ग्रैंडफादर ने जैसे उसे देखा कि ये उनको कोई रीज़न नज़र भी नहीं आया, और ग्रैंडफादर ने देखा कि वो अजीब सा बिहेव कर रही थी ये डोंकी, तो उसने उनके बैक पे, हॉन्चेस मीन्स बैक, यू कैन सी द मीनिंग आई हैव रिटन. हॉन्चेस मीन्स बैक पार्ट ऑफ any animal, right. And she jerked back. Jerked means to pull back, right. Dragging Toto with her. अब यहाँ पे क्या हुआ कि नाना ये जो ग्रैंडफादर थे इसके हॉन्चेस पे मतलब इसके बैक पार्ट पे, खासकर इसके द थाई पार्ट और द हिप्स पार्ट, राइट. उसके उस थाई पार्ट पे या हिप्स पार्ट पे वो ज़ोर से हाथ मारते हैं, स्लैप करते हैं ताकि वो शांत खड़ी हो जाए. एंड शी जर्क्ड बैक, और वो तुरंत ही पीछे हट जाती है, पीछे पुल या ड्रैग करती है पीछे की ओर. ड्रैगिंग टोटो विद हर, और साथ ही साथ किसको खींच लेती है, वो टोटो को भी. ही हैड फास्टेंड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विद हिज शार्प लिटिल टीथ. फिर लास्ट में अब जाके ना इस ग्रैंडफादर को पता चलता है कि वो क्यों बार बार पीछे हटने की कोशिश कर रही थी. वो इस वजह से क्योंकि उसके कानों को मतलब उसके कानों को, ये क्या नाम है, नाना के दोनों कानों को, मीन्स डोंकी के दोनों कानों को वो क्या कर रही थी, वो जो टोटो है वो अपने दांतों से दबा के रखा था, और इस वजह से वो पेन की वजह से, वो दर्द की वजह से वो बार बार पीछे जर्क कर रही थी, मतलब पुल कर रही थी अपने आप को कि वो वहाँ से भागना या हटना चाहती थी. टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स.
अब यहाँ पे ऑथर कहता है कि मेरे जो ग्रैंडफादर हैं, सॉरी, जो टोटो है और नाना, मतलब जो मंकी था और जो ये क्या नाम है, ये आपका डोंकी था, वो कभी भी दोस्त एक दूसरे के नहीं बन पाए। A great treat for Toto during cold winter evenings was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. अब एक बहुत अच्छी सी ट्रीटमेंट जो टोटो के लिए की जाती थी वो खासकर विंटर सीजन में की जाती थी, जब उसे एक बड़े से बाउल मीन्स एक बड़े से कटोरे में गर्म पानी दिया जाता था उसके नहाने के लिए, और ये गर्म पानी करके कौन देता था? ग्रैंड मदर। He would cunningly means, you can see I have written the meaning also. So cunningly means smartly, gradually means slowly, right? सो कनिंगली का मतलब है बहुत स्मार्टली, बहुत वाइजली वो क्या करता था? टेम्परेचर को टेस्ट करता था विद हिज हैंड, अपने हाथों से। देन ग्रेजुअली मीन्स स्लोली स्टेप इनटू द बाथ, और तो धीरे धीरे वो जब जैसे अपने हाथों से, जैसे आपने देखा भी होगा या हम लोग करते हैं कि जब पानी गर्म होता है तो हम उसे हाथ से टच करते हैं, फिर देखते हैं कि नॉर्मल हुआ है कि नहीं, तब हम वो पानी से या तो हाथ धुलते हैं या तो नहाते हैं। तो दैट इन द वेरी सेम मैनर ही वॉज ऑल्सो डूइंग थिंग्स। सो ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे वो फिर बाथ टब में अपने आप को ले जाता है। फर्स्ट वन फुट, पहले एक पैर, देन द अदर, फिर वो दूसरा पैर अपना ले जाता है। एज ही हैड सीन मी डूइंग, क्योंकि इस टोटो ने इस तरीके से किसको करते हुए देखा था? ऑथर को करते हुए देखा था। ऑथर को कई बार उसने ये करते हुए देखा था, तो यही चीज़ वो भी सीख गया था। Until he was into the water up to his neck, और ये तब तक ऐसे करता था जब तक कि वो पूरी तरीके से ये अश्योर ना हो जाए कि हाँ अब पानी ज़्यादा गर्म नहीं है और मैं अब इस पानी में या इस बाथ टब में मैं अपने आप को पूरा मतलब पूरा सबमर्ज करके मैं अब नहा सकता हूँ या बाथ ले सकता हूँ, राइट? सो लेट प्रोसीड फर्दर क्लास. So over here I have given you homework class. I am giving you homework. Students, you all have to write down all the hard words and meanings in your classwork copy and in book too, right? So like you have been doing the hard words and meaning in the book and then in the copy. So so in the very same manner, in this video also you have been you definitely have been come across or came across many hard words and meaning. So you have to write down those hard words and meaning in your book as well as in your copy, right? Also read the pages we have covered in this video, and you also have to go through the pages that we have covered in this video also and in the previous video also. Means you have to read down all the pages that we have covered till now, and also read a little further, and you also have to read a little further the chapter, right? So students, in our next class we will continue with the same chapter. Till then, take care and stay safe. Thank you class.